Your Grace, Most Reverend Archbishop Leo, Reverend Bishop Thomas Matthew,
Reverend Vice Provincial for the Sanjay, INC Provincial Councillors, Reverend Fathers, Brothers, Sisters, Father Rajesh Tricky, the parish priest, Father Nicholas Martis, Rector of St. Joseph Home, Father Johnny D'Souza, Rector of Catholic Ashram, Malda, friends, family members, especially Fathers niece Manju and Subina, his nephew Vinod, friends, well-wishers, Jeshu. We gather today in the presence of God, united in sorrow, yet anchored in the hope of the resurrection, to commend our beloved Father Ian John to the loving embrace of our Heavenly Father. This sacred moment, marked by the celebration of the Holy Eucharist, is both a farewell and a prayer. A prayer that entrusts Father Ian John to the eternal mercy and love of God, who is the source of life and mission, and the promise of eternal rest. As we stand together in this holy place, we are reminded of the words of Jesus. I am the resurrection and the life. Those who believe in me, even though they die, will live, and everyone who lives and believes in me will never die. These words are our comfort and our strength today. They remind us that death is not the end, but a passage to new life in Christ, who triumphed over the grave. Father Ian John's life is rooted in Christ and mission. Luke 4:18 says, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to bring good news to the poor." Father Ian John was born on August 22nd, just a few days left, in 1952 in Nagarkoil, Tamil Nadu, to late Mr. Igasimuthu Pillai and Mrs. Lucia Pillai. He had 3 brothers and 2 sisters. He joined the Society of the Divine Word in 1965, made his first vows in 1972, perpetual vows in 1979, and was ordained a priest in 1980. His first mission was at Jalod in Gujarat as an assistant parish priest. Recognizing his gift for communication, he served as Satprakashan Sanchar Kendra in Indore, and later pursued his studies in England, earning a diploma in communication. As director of Pradipti in Khandwa, he promoted interreligious dialogue and communication with creativity, openness, and dedication. He was a teacher, formator, a shepherd. Proverbs 1:5 says, "Let the wise hear and increase in learning, and the one who understands obtain guidance." So John was a brilliant teacher and a gifted formator. In Mahu, he served as procurator and prefect of students, giving young missionaries wisdom and patience. At Catholic Ashram Pruda, he helped form novices in prayer, discipline, and missionary zeal.
In Palda, he taught and served as land development officer, blending academic guidance and practical stewardship. Those who studied under him will remember his deep love for language, his clarity of thought, and his inspiring example. Service in retirement. Isaiah 46:4 says, "Even to your old age and grey hairs, I am He who will sustain you." In 2010, Father Ian John returned to St. Joseph's Home, Indore, also serving as editor of the province newsletter. Even after retirement, he remained active in spirit, writing daily reflections on the Mass readings, encouraging others with warm conversations, and enduring illness with remarkable serenity and faith. He was a passionate photographer and a gardener. He found joy in capturing the beauty of God's creation and nurturing life around him, which is very evident if you go to his room and observe. A man of generosity and detachment, when his parental property was divided among his family members, Father Ian John received his share and offered it to the congregation, while also extending help to people in need. In this, he lived out the words of Jesus, "Do not store up for yourselves treasures on earth, but store up for yourselves treasures in heaven. For where your treasure is, there your heart will also be." John 11:25 says, "I am the resurrection and life. The one who believes in me will live even though they die." Today we commend Father John into the loving arms of God, confident that he now shares the joy of the saints. His 45 years as a priest were a living witness to God's love and mission, and his life was in itself a homily of faith. Some compliments by confreres on late Father Ian John. Father Cyril D'Souza writes, "A lover of gardens and photography, he walked quietly with the rosary in hand and left us gently for the promised kingdom. May he rest in peace." Father Emmanuel Burgess writes, "Sad to hear the demise of Father John. In his own way, he tried to propagate the divine word in other words to many of us. May his soul rest in peace." Father Louis writes, "Father John was a beloved priest, dedicated procurator, talented journalist, and inspiring teacher. His integrity, commitment to mission, and gift for communication marked his ministry. As a teacher of prose at Palda, he instilled in students a love for language and clear expression. His life reflected the spirit of missionaries who served with selfless dedication. He will be deeply missed by confreres, students, and friends.
the intention of this Eucharistic celebration, as Philippians chapter 1:21 says, "For to me to live is Christ, and to die is gain." So we offer this Mass to thank God for the gift of Father Ian John's life and ministry, to pray for his eternal rest in the Lord, to seek comfort for his family, for confreres, and all who miss and mourn him. And so, my dear brothers and sisters, let us unite our hearts and voices as we celebrate this Eucharist. May this liturgy strengthen our faith, renew our hope, and inspire us to live our own call, as Father John did, with humility, service, and joy. हमारे भाई और पुरोहित फादर जॉन के लिए वे अभी संविधान चढ़ाते हुए उनकी आत्मा शुद्धि के लिए प्रार्थना करने के लिए योग्य बन जाएं। इस उद्देश्य से हम अपने पापों को और अपनी कमजोरी को इकरार करें और ईश्वर से एक दूसरे से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले, भाई और बहनों, सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हम सबको अनंत जीवन प्रदान करें। Amen.
तेरी कृपा से तेरे भक्तजन मन और हृदय से एक हो जाते हैं। अपनी प्रजा के हृदय में अपनी आज्ञाओं के प्रति प्रेम और अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्कंठा भर दे, ताकि इस परिवर्तनशील संसार में हमारा हृदय उस लोक में लगा रहे जहाँ सच्ची खुशी निवास करती है। तूने अपने सेवक पुरोहित जॉन को इस पृथ्वी पर आध्यात्मिक कार्यभार सौंपा था। उसकी आत्मा स्वर्गलोक में विराजमान होकर सदा सर्वदा आनंद मनाए। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे पिता पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 38, पद संख्या 4 से 6 व 8 से 10। मैं समस्त देश के लिए विरोध की चिन्ह बन गया हूँ। सामंतों ने राजा से कहा, यिर्मयाह को मार डाला जाए। वह यरूशलेम की हार की भविष्यवाणी करता है और इस प्रकार शहर में रहने वाले सैनिकों और सारी जनता की हिम्मत तोड़ता है। वह प्रजा का हित नहीं बल्कि अहित चाहता है। राजा सिदकिय्याह ने उत्तर दिया, वह आप लोगों के वश में है। राजा आप लोगों के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। इस पर वे यिर्मयाह को ले गए और उन्होंने उसको रक्षा दल के प्रांगण में स्थित राजकुमार मल्किय्याह के कुएं में डाल दिया। उन्होंने यिर्मयाह को रस्सी से उतार दिया। कुएं में पानी नहीं था, उसमें केवल कीच था और यिर्मयाह कीच में धंस गया। एबूद-मेलेक ने राजमहल से निकलकर राजा से कहा, हे राजा, हे मेरे स्वामी, उन लोगों ने नबी यिर्मयाह के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्होंने उनको कुएं में डाल दिया, वह वहाँ पर मर जाएंगे। इस पर राजा ने एबूद-मेलेक इथियोपी को यह आदेश दिया, यहाँ के 3 आदमियों को अपने साथ ले जाओ और इससे पहले कि यिर्मयाह मर जाए उन्हें कुएं में से खींच निकालो। यह प्रभु की वाणी है।
शक्ति से आगे बढ़ते हैं। मानव जीवन भी एक प्रकार की दौड़ है। हमें अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर अपने यीशु पर दृष्टि लगाकर आगे बढ़ना चाहिए। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 1 से 4। हम धैर्य के साथ दौड़ में आगे बढ़ते जाएं। जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान है तो हम पर हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और यीशु पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। यीशु हमारे विश्वास के प्रवर्तक हैं और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के हेतु उन्होंने क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसे कलंक की कोई परवाह नहीं की। अब वह ईश्वर के सिंहासन के दाहिने विराजमान है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग निरुत्साह होकर हिम्मत हार जाएं। इसलिए आप उनका स्मरण करते रहें जिन्होंने पापियों का इतना अत्याचार सह लिया। अब तक आपको पाप से संघर्ष करने में अपना रक्त नहीं बहाना पड़ा। यह प्रभु की वाणी है। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ? मैं तुमसे कह देता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं फूट डालने आया हूँ, क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो मैं उनमें फूट होगी। 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध। सास अपनी बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपनी सास के विरुद्ध। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है।
Thomas Matthew, the Provincial Superior, Father Paul Raj, और उनके काउंसलर्स, हमारे 3 घरों के रेक्टर्स, जैसे पल्ले पुरोहित, Father राजेश, उनके साथ सब पल्ले पुरोहित, उपस्थित प्रोविंशियल सुपीरियर्स, मेरे सब पुरोहित भाइयों, धर्म संघ के भाइयों बहनों, हमारे फादर जॉन के रिश्तेदार परिवार के लोगों, यहाँ पर जो उपस्थित हैं और जो शुभ मना रहे हैं, वैसे सब लोग धर्मी भाइयों बहनों, बधाई और विदाई, ये दोनों शब्द, उसमें ज़्यादा फर्क मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन उसके अर्थ में ज़मीन और आसमान का फर्क है। कल ही हम लोग इसी वक्त करीब बधाई दे रहे थे, खुशी मना रहे थे, एक साथ मिलकर नाच गाने चल रहे थे, और आज हम यहाँ पर दुख महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कल की बधाई आज एक रीति से विदाई में बदल गई। यह है जिंदगी, खुशी और गम ये दोनों एक साथ चलते हैं, क्योंकि यदि हम हमेशा खुश रहते हैं तो गम क्या है, दुख क्या है, हम समझते नहीं, और हमेशा दुख में रहते हैं तो शायद जिंदगी बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए हर तरह का जो हमारा भाव है, भावना है, उससे हमारी ज़िंदगी आगे चलती है और ज़िंदगी इसलिए एक सफ़र कही जाती है। आज जब हमारे भाई पुरोहित फादर जॉन आयम को विदाई दे रहे हैं, हम दुखी मन से उनको विदाई दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पिछले 45 वर्ष तक पुरोहित के रूप में अलग अलग सेवाएं उन्होंने दी, और अलग अलग रीति से हमारे धर्म संघ की, समाज की और कलीसिया की सेवा की। करीब 8 या 9 जगहों पर उनका बदलाव हुआ, अलग अलग जगह पर उन्होंने जाकर अपनी रीति से अपने कार्य किए। हमेशा वे तत्पर रहते हुए, कार्य करते हुए, खुशी से उन्होंने अपना जीवन बिताया। Hence, as Rabindranath Tagore says, death is not extinguishing the light, it is only putting out the lamp because the dawn has come. That is Rabindranath Tagore who says that it is so Christian in their outlook, in his outlook. यह क्रिस्तीय भावना है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, हम हमेशा कहते हैं मृत्यु जीवन के, अनंत जीवन की का एक दरवाज़ा है, जिसे हम प्रवेश करते हैं, और जो विश्वासी हैं वे प्रभु के साथ एक हो जाते हुए अनंत जीवन महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। The whole life of a Christian is a holy desire. For what else do we desire when we desire a happy life but to be with Christ? And what else do we desire when we fear death and the desire to be with Christ? Says Saint Augustine of Hippo. Whatever the desire, जो भी हमारी इच्छा है, जो भी हमारी कामनाएं हैं, आखिर में भला बुरा कुछ रीति से और खुशी और गम, इस सब का समावेश प्रभु के साथ रहता है। जिस प्रकार प्रभु ने दुख उठाया, कष्ट उठाए, उसी प्रकार हमें भी कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना है और हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और मैं जानता हूँ, जैसे अभी फादर एम जॉन करीब 8 वर्ष हमारा फ़र्क है, लेकिन मैं सेमिनरी से उसे जानता हूँ, सेमिनरी समय से। उसके बाद भी बहुत बार ऐसे उनसे मिला हूँ, तो काफ़ी साल वे इंदौर में ही रहे, और मैं भोपाल और खड़गा रहते हुए भी आते जाते रहता था। लेकिन मैं हमेशा कर्मठ व्यक्ति
हमेशा अपने काम में लगे हुए और हार्ड वर्किंग, कमिटेड, क्रिएटिव, इनोवेटिव, एंड ही लव्ड द स्पिरी सोसाइटी एंड हिज प्रीस्टहुड। अपने पुरोहित आश्रम से प्यार था और हमेशा कर्मठ रीति से, कार्य रीति से कार्य करते रहे। उनका आर्टिस्टिक सेंस था। कम्युनिकेशन में उन्होंने इंग्लैंड में स्टडीज़ की, लेकिन उनका एक आर्टिस्टिक सेंस था। मैं सोचता हूँ अर्नव सेवा सदन में जो बगीचा बना है उसमें उनके आइडिया, उनका योगदान है। अलग अलग रीति से उनका आर्टिस्टिक सेंस उन्होंने बताया। लेकिन आज जरूर वे नहीं रहे, हम दुखी हैं। फिर भी हम खुश हैं कि उन्होंने जो योगदान दिया उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर हमें एक औजार, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में उपयोग करते हैं और यदि हम उसके सदुपयोग करें, हमारे जीवन का सदुपयोग करें, अपनी रीति से कितना कुछ रीति से योगदान दें इस समाज में और सोसाइटी में और कलीसिया में, तो ज़रूर हमारा जीवन फलदायक होता है। उन्होंने गुजरात में, खंडवा में, वैसे यहाँ इंदौर में काफ़ी सालों तक अलग अलग रीति से अपना योगदान दिया और कार्य किया। प्रभु ने उचित पुरस्कार दें, इसके लिए हम हमेशा प्रार्थना करते रहेंगे। और आज के पाठों में हम सुनते हैं किस प्रकार यिर्मयाह को एक कुएं में डाला गया, लेकिन इसी प्रकार ईश्वर ने उन्हें बचाया। एक नबी आया, उसने कहा कि यह तो बुरा किया, इसलिए उन्हें उससे निकाल दिया। लेकिन अनेक पुरोहितों, अनेक प्रॉफिट्स को, जो नबी थे, उनको काफ़ी कष्ट सहने पड़े। और आज हम जानते हैं, हम धार्मिक और पुरोहित लोग काफ़ी कष्ट सहते हैं। भारत में भी काफ़ी कष्ट हमें मिलते हैं, सिर्फ पुरोहित या धर्मसंगी के नाम से हम जानते हैं। लेकिन क्या हम अपने कदम पीछे हटाएं? क्या हम अपना कार्य को छोड़ दें? नहीं, यह एक तरह की चुनौती है। इस चुनौती का सामना करना हमारा कर्तव्य है। और इसलिए आज संत पौलुस हमें कहते हैं किस प्रकार विश्वासियों की साक्षियों में बनना है। हमारे चारों तरफ जो विद्यमान है वे किसी न किसी रीति से क्रिस्त की साक्षी देते हैं, भले ही हम छोटी मात्रा में हो। पाप को छोड़ यीशु पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में हम आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा गया है, हर भरी का नाम लिखा गया है। इसलिए हमें दृढ़ता के साथ, शक्ति के साथ आगे बढ़ना और ईश्वर की सेवा करते हुए मानव जाति की सेवा करना हमारा क्रिस्तीय धर्म है। और कल के हमारे प्रोग्राम से यह हमने जाना किस प्रकार एसपीडी समुदाय दुनिया भर में अलग अलग रीति से कार्यरत है और एक मेंबर के रूप में एसपीडी समुदाय के एक सदस्य के रूप में फादर ने अनेक तरह की सेवाएं दी हैं। उन सेवाओं के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आज के सुसमाचार में हमें प्रभु कहते हैं इस प्रकार हमें to become a radical disciple, a radical decision to be a disciple, the discipleship, प्रभु के अनुयायी बनना यानी हर एक तरह की समस्याओं को दूर करना, समस्याओं का सामना करना और इस प्रकार हमारी यात्रा आगे बढ़ाते जाना। और आज जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं फादर जॉन के जीवन के लिए, हमें भी इससे प्रेरणा मिलती है कि हमारे कर्तव्यों का पूरी तरह से पालन करते हुए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने जीवन को साकार बनाएं। साक्षात ईश्वर हमें अपने रीति से उपयोग करें और हमें अपने जीवन में सफलता दें और साथ साथ आंतरिक रीति से खुशी दें, जिससे कि हमारे जीवन की यात्रा को हम सही दिशा में बढ़ाएं। और हम विशेष रूप से फादर जॉन के परिवार के लोगों को याद करते हैं। उन्हें दुख तो जरूर होता है, लेकिन हम उसमें भागीदार होकर, जैसे कहा जाता है कि दुख जब हम दूसरों के साथ बांटते हैं वह आधा हो जाता है, खुशी जब बांटते हैं वह दुगनी हो जाती है। इसलिए हम उनको सांत्वना देते हुए
हम अपने भाई को बिता दें। प्रभु ने अनंत शांति प्रदान करें। आमीन। हमारे विश्वास को घोषित करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पृथ्वी एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वो ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारे मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनुष्य बना। उसने पौंतीस पिलातुस के समय से होगा, वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा गया, वह मर गया, दफनाया गया और धर्म के अनुसार इसके लिए से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ से आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसन्न से होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना महिमा होती है और नबियों के मुँह से हो रहा है। मैं एक पवित्र आत्मिक पिता प्रेरित से विश्वास करता हूँ। मैं पापों के क्षमा के लिए एक बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बात करता हूँ। आमीन। पवित्र पिता
शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने स्वयं मरना स्वीकार किया ताकि हम सब मृत्यु से बच सकें। इन्होंने अकेले मरना स्वीकार किया ताकि हम सब तेरे सम्मुख सदा सर्वदा जीवित रहें। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद के उमंग में हम सब तेरा स्तुतिगान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे मुखारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो।
विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद उद्भोग तथा अपने पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बात जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया के बेल पर कृपा दृष्टि डाल और ये बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारे परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारा पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर, दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। अपने सेवक फादर आयम जोन की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे वो बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। उस दिन प्रभु यीशु हमारे मृत शरीर को फिर से जीवित करेंगे और हमारे नश्वर शरीर को अपने तेजोमय शरीर के अनुरूप बना देंगे। हमारे मृत भाई बहनों को और उन सबों को भी जो तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, दयापूर्वक अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं। वहाँ हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहेंगे। उस समय हे हमारे ईश्वर, तू हमारे सब आंसू पोंछ देगा, क्योंकि हम तेरा यथार्थ दर्शन करेंगे और तेरे अनुरूप बनकर अनंत काल तक तेरी स्तुति करते रहेंगे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। सब मिलकर दृढ़ विश्वास और भक्ति के साथ हमारे स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है,
हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान विजेता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर की विनती संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की विनती संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की विनती संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं।
पुरोहित भाई फादर जॉन के आकस्मिक निधन पर उनकी अंतिम यात्रा के मिसा बलिदान में भाग लेने आए आप सभी को जय यीशु। साथ में उनके परिवार को हमारी प्रार्थनाएं संवेदनाएं our heartfelt and prayerful condolences to all the relatives of Father John, especially who are here present, Vinod, Manju and Sukina. मैं मध्य भारत प्रांत IMC प्रोविंस की ओर से सर्वप्रथम आज बिशप लियो कोर्नेलिया का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी फादर जॉन की अंतिम यात्रा करने से बलिदान चढ़ाकर और साथ में उनके प्रवचन द्वारा उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। बिशप जी आपको धन्यवाद। हम शुक्रगुजार हैं बिशप थॉमस मैथ्यू की आपकी प्रार्थना में उपस्थिति, और आपकी ये उपस्थिति हमारे लिए संवेदना का लेप लेकर आती है। आपको धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर खापरा और ओपन नर्सिंग होम के स्टाफ को, और साथ ही साथ सेंट फ्रांसिस के स्टाफ, विशेषकर सिस्टर मोनिका और जैकलिन को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। SSP सिस्टर्स को जिन्होंने फादर का कॉफिन तैयार किया है। फादर बाबू को धन्यवाद देते हैं उनकी फादर जॉन की ओबिचुरी लिखने के लिए। फादर सुरेश और विद्युदया की कम्युनिटी को धन्यवाद देते हैं आपके क्वायर के लिए। फादर के पैरिश प्रिंस फादर राजेश और उनके सहयोगियों को का हम आभार मानते हैं, विशेषकर FSPM सिस्टर्स का मिसा की सभी तैयारियों के लिए। फादर डायरेक्टर फादर चोनी और समस्त पाल्डा कम्युनिटी को हमारी ओर से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सेमेट्री में दफन की सभी तैयारियों के लिए सत्प्रकाशन संचार केंद्र के स्टाफ को हम धन्यवाद देते हैं फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए। यहाँ उपस्थित सभी पुरोहित भाई सिस्टर्स, लोक धर्मी ले पार्टनर्स जो भी फादर जॉन की अंतिम यात्रा की मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए आए हैं, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए आप सभी आए हैं। उनको आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दफन विधि के पश्चात आप सभी आमंत्रित हैं सेंट जोसेफ होम के प्रांगण में, सेंट जोसेफ होम के प्रांगण में भोजन के लिए, और साथ में जो कब्रिस्तान सेमेट्री जाने का रास्ता पक्की सड़क लेंगे, दूसरी जगह काम चल रहे तो पक्की सड़क लेंगे, और जो गाड़ियां हैं जो व्हीकल्स हैं वो स्कूल के प्रांगण में वहाँ पर, और स्कूल का जो रोड है साइड में हम लगा सकते हैं। कृपया ध्यान दें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, मुक्ति का संस्कार ग्रहण कर हम तेरी दया की याचना करते हैं। तूने इस पृथ्वी पर अपने सेवक पुरोहित हमारे भाई जॉन को अपने संस्कारों का भंडारी नियुक्त किया था। अब वे स्वर्ग में तेरे सत्य का साक्षात दर्शन करें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा लें, मिसा संपन्न हुआ। हे प्रभु करुणा सागर, तू दीन दुखियों का आश्रय है और उन्हें सांत्वना देता है। तू अपने दुखी जनों को दिलासा दे। तू ही जीवन दाता और मृत्यु विजेता है, अब सदा सर्वदा और अनंत काल तक। आमीन। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को
शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। प्रभु तेरी सूली को नतमस्तक गुहारा दे, शरीर सबका उद्धार है, शरीर में ही जीवन है। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। धरती सब तेरी, मृतक जीवन पाने दे। जिंदे तुझ में निरत रहे, आश्रय सबका होने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। लोगों के पापों को मिटा के उनको जीवन दे। ज्ञान स्नान के पानी से सब जन तेरी संतान है। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतलोक तेरी काया को एवं पावन लोगों को स्वीकार लिया पृथ्वी में, स्वीकार हुआ आकाश में। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। हुए भी जो मिट्टी में उगते वर्षा बूंदों से, सुंदर धुनी की आवाज मृतक सारे जी उठे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा मृतकों को नव जीवन दे। शैतान शक्ति दूर करो, जीवन ज्योति दान करो। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। न्यायाधीश यीशु तू दे दो मुक्ति पापों से। न्यायाधीश से बचावे तेरे नश्वर भक्तों को। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। हे प्रभु तू अपनी कृपा से हमारे पापों को मिटा दे और हमें आशीर्वाद दे। तेरा अनुग्रह हमें संभाले। तू ही जीवन दाता तथा मृत्यु विजेता है। तू ही जीवन का आधार तथा आत्मा का आशा केंद्र है, अब सदा सर्वदा और अनंत काल तक। आमीन। स्वीकार करना प्रभु मेरा विश्वास हुआ, सामने तेरे दासों का बलिदान सारा। स्वीकार करना प्रभुवर मेरा विश्वास पूर्वक, सामने तेरे
से तूने स्वीकार किया, स्वीकार करना प्रभुवर मेरा विश्वास पूर्वक सामने तेरे दास लोगों का बलिदान सारा। हे प्रभु, मैंने गहरे गर्भ से तुझे पुकारा है, हे स्वामी मेरी पुकार सुन ले। तेरे विनय में शब्दों पर तत्परता का ध्यान दे। यदि तू अपराधों पर ध्यान देता रहता तो कौन तेरे सामने टिक सकता। तेरे पापों के लिए क्षमा है, मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूँ। मेरी आशा उसके वचन पर है, मेरी आत्मा प्रभु की प्रतीक्षा करती है। ये जितना बहुत वो चाहता है उससे भी अधिक मैं बहुत चाहता हूँ। इस्राएल प्रभु पर आशा लगाए रहे, क्योंकि प्रभु दया सागर है। उसके पास होती है और इस्राएल को उसके अपराधों से उद्धार करेगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हो। जैसे वादा देते हे प्रभु, तूने अपनी सजीव एवं जीवनदायी वाणी से मृत लाजरुस को जीवित कर दिया। वही वाणी हमारी इस फादर आयन जॉन की न्यायविधि के दिन जिलाइए। तेरी दाहिनी और धर्मियों के साथ खड़े होने की कृपा दे। हे करुणा सागर, तू ही जीवन का स्वामी है, अब सदा सर्वदा और अनंत काल है। आमीन। हे प्रभु तेरा आशीर्वाद। ओ मसीह सबके प्रभु, तेरे दूसरे महिमापूर्ण आगमन के समय जब स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा, सारे मृतकों कब्रों में से जी उठेंगे और धर्मियों को अधर्मियों से अलग करेगा। उस मुक्तिदायक क्षण में तेरे इस भक्त फादर आयन जॉन पर दया दृष्टि डाल और स्वीकार कर, जिससे वह भी उसी स्वर्ग राज्य का उत्तराधिकारी बने जो धर्मियों के लिए जगत के आरंभ से तैयार रखा है। आज के इस दिव्य कर्म में भाग लिए हम सभी सारे विश्व पर और कलीसिया और उसकी संतानों पर तेरी कृपा तथा अनुग्रह की निरंतर वर्षा हो, अब सदा सर्वदा और अनंत काल तक। हे प्रभु, से अनंत शांति प्रदान कर, मृत विश्वासी पवित्र की आत्मा परमेश्वर की दया से शांति में रहे। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। Amen.
अलविदा अब तुम्हें नमन, मात पिता और भाई बहन। अलविदा अब तुम्हें नमन, मात पिता और भाई बहन। रहूं तो कब तक तुम्हारे संग, एक दिन है सबका स्वर्ग गमन। रहूं तो कब तक तुम्हारे संग, एक दिन है सबका स्वर्ग गमन। अलविदा अब तुम्हें नमन, मात पिता और भाई बहन। जीवन की कई कमियां मेरी, अगणित खताएं मुझसे मेरी। जीवन की कई कमियां मेरी, अगणित खताएं मुझसे मेरी। जीवन प्रणय में घटित है सारी, पछताऊं पापों पर भारी। अलविदा अब तुम्हें नमन, मात पिता और भाई बहन। रहूं तो कब तक तुम्हारे संग, एक दिन है सबका स्वर्ग गमन। क्षमा याचना अब है मेरी, स्वजनों से ये अर्ज है मेरी। क्षमा याचना अब है मेरी, स्वजनों से ये अर्ज है मेरी। मेरी खातिर करो प्रार्थना, पा जाऊं संजीवन पानी। अलविदा अब तुम्हें नमन, मात पिता और भाई बहन। अलविदा अब तुम्हें नमन, मात पिता और भाई बहन। रहूं तो कब तक तुम्हारे संग, एक दिन है सबका स्वर्ग गमन। रहूं तो कब तक तुम्हारे संग, एक दिन है सबका स्वर्ग गमन। एक दिन है सबका स्वर्ग गमन। एक दिन है सबका स्वर्ग गमन। पिता
जग का उद्धार करके आ रहा हूँ पिता। जिसे अर्पित करने भेजा तूने, टूटी वाणी टूटा ये मन, यहाँ नहीं कोई मेरा, पर है पिता तू है मेरा। आ रहा हूँ पिता, तेरे जग का उद्धार करके आ रहा हूँ पिता। तेरे जग का उद्धार करके आ रहा हूँ पिता। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, 3 दिनों तक कब्र में रहकर तूने अपने भक्तों की कब्र में पवित्र की। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि यद्यपि हमारा शरीर पृथ्वी के घरों में रखा जाता है, हम तेरे समान ही जी उठेंगे। हमारे पुरोहित फादर आई.एम. जॉन का शरीर इस कब्र में उस घड़ी तक विश्राम पूर्वक पड़ा रहे जब तू जो पुनरुत्थान और जीवन है इन फादर को पुनर्जीवित और अलौकित ना कर दे। हे प्रभु, स्वर्ग राज्य में ये तेरे मुखमंडल की ज्योति से सुशोभित रहे, जहाँ तू युगान युग जीता रहता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमारे पुरोहित फादर आई.एम. जॉन को इस संसार से बुला लिया है, इसलिए हम इनका शरीर उस मिट्टी में रख रहे हैं जिससे यह बनाया गया था। मृतकों में से सर्वप्रथम क्रिस्त जी उठे। हमारा विश्वास है कि क्रिस्त हमारे नश्वर शरीर को पुनर्जीवित कर अपने महिमामय शरीर के समान बना देंगे। हम लोग अपने फादर आई.एम. जॉन के लिए प्रभु से निवेदन करें कि वह इनको अपनी परम शांति के निवास में ले जाए और इनकी देह को अंतिम दिन पुनर्जीवित करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, तूने अपने पुत्र यीशु को मृतकों में से जिलाया। हम पूरे भरोसे के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने विश्वासियों को मुक्ति प्रदान कर। हमारे पुरोहित फादर आई.एम. जॉन को बपतिस्मा में अनंत जीवन की जमानत मिली थी। अब अपने संतों की संगति में इनका स्वागत करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। इन्होंने क्रिस्त का शरीर अनंत जीवन का भोजन ग्रहण किया था। इनका शरीर अंतिम दिन पुनर्जीवित हो जाए। हमारे फादर आई.एम. जॉन इस पृथ्वी पर पुरोहित का कार्य करते थे। अब तो स्वर्ग के पूजन समारोह में इनका स्वागत कर। हम अपने मृत भाई बहनों, संबंधियों और उपकारकों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो उन्हें पुण्य कर्मों का इनाम दे। जितने लोग पुनरुत्थान की आशा में शांति की नींद सो रहे हैं, वे सब तेरे प्रत्यक्ष दर्शन करें। हमारी प्रार्थना सुन। जो अपने प्रियजनों की मृत्यु पर शोक मनाते हैं, उन्हें तो कृपा करके सहायता और दिलासा दे। हमारी प्रार्थना सुन। हम सबों को जो तेरी उपासना करने यहाँ एकत्रित हुए हैं,
तो अपने प्रताप में राज्य में बुला ले। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से यह उत्तम प्रार्थना करें जिसे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें सिखाया और हमारे मृत भाई फादर आई.एम. जॉन बारंबार बोले थे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम अपराध में अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल प्रणाम मरिया कृपा प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण तेरे साथ है, स्त्रियों में और तेरे प्रताप यीशु ऐसे मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना कर और हमारे आमीन। कृपा पूर्ण तेरे साथ है, स्त्रियों में और तेरे प्रताप यीशु ऐसे मरिया यीशु की मां प्रार्थना पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। चला पिता के पास, मैं तो चला पिता के पास, जो है मेरा पिता। मैं तो चला पिता के पास। मेरे भूल तू जाना, मेरे सारे काले का। पिता मेरे भूल तू जाना, मेरे सारे काले का। दिल मेरा ये प्यासा था, दिल मेरा ये प्यासा था। अनजाने में कुछ भी नहीं मिला मुझे, जो था वह भी खोकर आता हूँ। मैं तो चला पिता के पास, मैं तो चला पिता के पास, जो है मेरा पिता। मैं तो चला पिता के पास। पिता मेरे अपना लेना, मैं हूँ तेरे घर की लाज।
पिता मेरे अपना लेना, मैं हूँ तेरे घर की लाज। दिल में ना है उजलापन, दिल में ना है उजलापन। हे पिता कौन कहेगा तेरा बेटा ये सब बातें तज कर अपना लो। मैं तो चला पिता के पास, मैं तो चला पिता के पास, जो है मेरा पिता। मैं तो चला पिता के पास।